So today we'll take up the 23rd session on relative velocity. This will be in continuation to the 22nd video. Okay. In 22nd video, we discussed numerical problems on calculation of relative acceleration between two moving points. 2 points P1 and P2 were given, whose accelerations with respect to ground was specified, and in different cases we had to determine the magnitude of relative acceleration of P2 with respect to P1 in ground frame. So those problems we have discussed in last video. In this video, we will take up the calculation of relative acceleration between two moving points when the points are moving either in the same direction or in opposite direction along a common line joining them. This will be discussed in view of its importance. So because it is very important, this concept frequency arises in frequently comes in mechanics and other portions of physics. So in view of its importance, we'll take up this 23rd video in which we'll calculate the magnitude and direction of relative acceleration of one point with respect to other when for the given case when the points are moving along common line joining them with acceleration either in the same direction or opposite direction. Okay. So the basic theory which we'll use is this. The basic theory will use that suppose as we discussed in the previous video, 22nd video, that suppose G is a given ground frame. Okay, G is the ground frame. P1 and P2 are two moving points. P1 and P2 are two moving points. Acceleration of P1 with respect to ground at a certain instant is A1G, and acceleration of P2 with respect to ground is A2G, and we have to find the relative acceleration of P2 with respect to P1 in ground frame. So that we'll denote by this notation A P2 P1 G, that is same as A2G minus A1G. This was specified in 21st and 22nd video, and this is nothing but the vector difference of these two vectors. And we know from the theory of vector difference that this is just the vector addition of A2G and reverse of A1G. This minus A1G is the reverse of vector A1G. So if we have to determine the acceleration of P2 with respect to P1 in ground frame, then what we have to do is that we have to reverse the acceleration of P1 with respect to ground, that is minus A1G, and this has to be added vectorially to A2G. And minus A1G, we know that the magnitude of this vector, reverse of A1G, is same as the magnitude of vector A1G, and direction of this vector is opposite to A1G. So once we have reversed this A1G, then we have to follow the rules of vector addition to determine the value of AP2 P1 slash G. Fine. So we'll take up numericals based on this concept, and we'll assume that both the points are moving along common line joining them with respect to ground frame, and the accelerations are directed along this line, and we'll calculate the relative accelerations, magnitude and direction. Fine. So the discussion of this on this video will be based on this formula. Fine. So I'll drop this. Okay. So I'm repeating it once again. Once we have reversed vector A1G, then we have to follow the rules of vector addition to determine AP to P1G. Fine. So we'll take up some problems. The first question is this. So I'll write down the statement. ठीक है ना? जो प्रॉब्लम जो है जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल डिस्कशन, उसका कॉमन स्टेटमेंट हम लिख देते हैं. ठीक है, और उसके बाद से हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसको. तो प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है बेसिकली हर प्रॉब्लम के लिए सेम रहेगा. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये रहेगा, हम लोग स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे कि P1 and P2 are 2 points which are moving with respect to ground along common line joining them. 2 points moving along common line joining them with respect to ground.
along common line joining them with respect to ground. ग्राउंड को हम लोग जी से डिनोट करें, ठीक है। जी फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। जी फ्रेम मीन करेगा ग्राउंड फ्रेम। So P1 and P2 are 2 points moving along common line joining them with respect to ground frame. और दोनों पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसी लाइन के लॉन्ग है, ठीक है ना। सो ये तो होगा ही, स्ट्रेट लाइन मोशन का प्रॉपर्टी है। सो एक्सेलरेशंस ऑफ P1 and P2 with respect to ground, G for ground हो गया, is along common line joining them, ठीक है ना, is along common line joining them। तो हर केस में हम लोग को गिवन रहेगा, हर केस में A1G A2G गिवन रहेगा और हमको P2 का एक्सेलरेशन P1 के रेस्पेक्ट में निकालना है ग्राउंड फ्रेम में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। तो हर केस में गिवन क्या रहेगा, गिवन हम लोग को दिया रहेगा A1G और A2G और हम लोग को डिटरमिन करना रहेगा P2 P1/G, मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। और हम लोग को फाइंड करना है टू फाइंड P2 P1G, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जानना है, ठीक है ना। और ये होगा A2G माइनस A1G यानी A2G एंड रिवर्स ऑफ A1G, इन दोनों का वेक्टर सम, ठीक है ना। तो हर केस में हमको A1G एंड A2G गिवन रहेगा और हमको फाइंड करना है P2 P1G, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हमको डिटरमिन करना है, ठीक है ना। और इसका मीनिंग क्या है हम समझा ही चुके हैं आपको, ठीक है। इसको मिटा देता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ऐसा है, देखिए एग्जांपल वन में ऐसा है कि ये दो पॉइंट है P1 और P2, ये दोनों को जोड़ने वाला लाइन हो गया। P1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है राइटवर्ड है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। और P2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर P2, ये दोनों एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अब हमको बताना है कि इस केस में P1 के रेस्पेक्ट में P2 के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो उसमें एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, वो जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे अभी वो लगा देंगे। सो P2 P1G हम लोग को जानना है, तो सिंपली हो जाएगा A2G माइनस A1G, जिसको हम लोग लिखेंगे A2G एंड रिवर्स ऑफ A1G। ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस A1G और रिवर्स ऑफ A1G है। तो हम लोग को P2 का निकालना है रिलेटिव एक्सेलरेशन P1 के रेस्पेक्ट में, इसको रिवर्स करके इसे वेक्टोरियली जोड़ देंगे। और P1 का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड है, इसको रिवर्स करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड हो जाएगा। और P2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड है। तो जो P2 का जो P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ 5 लेफ्ट एंड रिवर्स ऑफ 3 राइट, यानी 3 लेफ्ट। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर लेफ्ट, और ये 3 राइट है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेफ्ट हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट। अब इन दोनों का वेक्टर सम, और रिवर्स करने के बाद इन दोनों को वेक्टोरियली वैसे ही जोड़ना है जैसे हम लोग दो वेक्टर को जोड़ते हैं। और उसका रूल तो आप जानते हैं, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सम ऑफ मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन वही होगा जो किसी एक का होगा। तो इस केस में हम लोग देखते हैं P2 P1G, जो उसका मैंने P2 P1G इन दोनों का वेक्टर सम है, उसका मैग्नीट्यूड दोनों मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा, 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन वही होगा जो किसी एक का है, लेफ्टवर्ड होगा। देखिए
ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। इस केस में P2 का जो P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड फ्रेम में, वो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल डिस्कस कर दिए। तो इसमें एक चीज बोलेंगे, अब ये देखिए रिवर्स करने के बाद फिर से माइनस नहीं दिखाना है, बस जान लीजिए आप। जैसे ये 3 राइट था ना, A1G वेक्टर जो था, वेक्टर A1G 3 राइट था, तो माइनस A1G यानी रिवर्स ऑफ A1G 3 लेफ्ट हो जाएगा। तो 3 लेफ्ट दिखाने में फिर से हम -3 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर -3 अलग से नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर हम सिंपली 3 ही लिखेंगे, क्योंकि माइनस बताता है डायरेक्शन को रिवर्स करना। तो डायरेक्शन को रिवर्स किया तो माइनस को अकाउंट में हम ले चुके हैं। आप उसके बाद सिर्फ सिंपल हमको वेक्टर एडिशन रूल फॉलो करना, अलग से -3 यहाँ नहीं लिखाएगा, खाली 3 लिखाएगा। ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल ऐसा है, देखिए P1 ऐसे है, P2 ऐसे है। P1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। और P2 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में P1 का जो एक्सेलरेशन है वो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्टवर्ड है, और P2 का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड है। अब हमको बताना है कि P2 का P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा ग्राउंड फ्रेम में। उसमें वही कंसेप्ट लगाएंगे, ये फॉर्मूला ये जो हम लोग लगा रहे हैं यही वाला लगाएंगे बार बार, जैसे हम स्टेट कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे P2P1G को लिखेंगे A2G प्लस रिवर्स ऑफ A1G। तो इसको रिवर्स करके इससे वेक्टोरियली जोड़ देंगे। अब A1G इसमें कितना है, 7 लेफ्ट है, तो माइनस A1G क्या होगा, 7 राइट। तो 7 राइट को 8 राइट से वेक्टोरियली जोड़ देंगे, इसलिए ये P2P1G जो होगा वेक्टर सम होगा किसका, 8 राइट और 7 राइट का वेक्टर सम। 8 राइट 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड हो गया, प्लस 7 लेफ्ट था A1G, तो माइनस A1G हो जाएगा 7 राइट, इसमें वेक्टर सम ऑफ कितना, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड। अब इन दोनों को जोड़ना है, अब इन दोनों वेक्टर का सेम डायरेक्शन, देखिए दोनों राइटवर्ड है, इसका जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वेक्टर सम है, इसका मैग्नीट्यूड होगा 8 + 7 बाय द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड होगा 8 + 7 सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन राइटवर्ड हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आप लोगों को क्लियर है। इसमें बस रिवर्स एड करना है, बस जान लेना है, और रिवर्स में फिर से माइनस साइन नहीं लिखना है। मैंने माइनस को अकाउंट बताता है कि डायरेक्शन को उलटना है, तो डायरेक्शन को जब उलट दिए हम, जैसे यहाँ 7 लेफ्ट था तो रिवर्स किया तो 7 राइट हो गया, तो माइनस को हम अकाउंट ले चुके हैं, अलग से माइनस साइन फिर नहीं लिखना है, एक बात जान लीजिए। ठीक है, फाइन। दो एग्जाम्पल डिस्कस किए, और भी एग्जाम्पल्स टेकअप करते हैं। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल टेकअप करेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसको अलग से डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल टेकअप करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखिए ऐसा है, ये P1 है, ये आपका P2 है। P1 जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड, और P2 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड। ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, दोनों का सेम डायरेक्शन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फिर से हमको ये P2P1G को का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना है। अगेन फॉर्मूला वही और फॉर्मूला यूज होगा जो बार बार हम यूज कर रहे हैं, जो हम स्टेट कर चुके हैं। इसमें हम लिखेंगे ये P2P1G को लिखेंगे A2G माइनस A1G, यानी A2G एंड रिवर्स ऑफ क्या, A1G। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम A2G और रिवर्स ऑफ A1G को वेक्टोरियली जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमको, ये इन दोनों का वेक्टर सम है। ठीक है, अब इसमें ये A2G क्या है, 9 राइट है, इसको लिख देंगे ऐसे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर
राइटवर्ड लिखेंगे। A1G क्या है, 4 राइटवर्ड है, तो माइनस A1G यानी रिवर्स ऑफ A1G क्या होगा, 4 लेफ्टवर्ड हो जाएगा। इसको वेक्टरली जोड़ देंगे किससे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर, लेफ्टवर्ड से। इन दोनों का जो वेक्टर सम है वही AP2P1G है। अब इन दोनों को जोड़ना है हम लोग को वेक्टर को। अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बाय द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन AP2P1G का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 9 होगा राइट, माइनस 4 लेफ्ट, 9 माइनस 4, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन वही होगा कि इन दोनों में बड़ा वाला मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर का डायरेक्शन है, बड़ा मैग्नीट्यूड 9 है, 4 छोटा है 9 से, इसका डायरेक्शन राइटवर्ड है, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, राइटवर्ड हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर P1 के रेस्पेक्ट में P2 का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ गया एक और। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो बस रिवर्स एंड ऐड कंसेप्ट है, दैट्स ऑल। वेक्टर में रिवर्स करके और उसका वेक्टर एडिशन का रूल्स लगा के उसको जोड़ देना है, इतना ही तो करना है, और क्या करना है, दैट्स ऑल। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल, हाँ फोर्थ एग्जांपल देखिए, ऐसा है, देखिए ये P1 है, ये P2 है। P1 मान लीजिए जा रहा है इधर 15 मीटर, सॉरी एक मिनट क्लमजी हो गया है, ठीक कर देते हैं इसको ना। P1 जो है राइटवर्ड जा रहा है कितना से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइटवर्ड जा रहा है P1, और P2 मान लीजिए जा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है। फिर से हमको AP2P1 निकालना है, मैंने P2 का P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा ग्राउंड में, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जानना है। यही फॉर्मूला यूज होगा बार बार, तो बार बार हम बोल रहे हैं आप लोग को, है ना। तो हम लिखेंगे AP2P1G को लिखेंगे A2G माइनस A1G, यानी A2G एंड रिवर्स ऑफ A1G, माइनस A1G रिवर्स ऑफ A1G हो गया, जो हम बता चुके हैं। अब इसमें A2G क्या है, A2G 9 राइट है, A1G क्या है, 15 राइट है। अब AP2P1G A2G और रिवर्स ऑफ A1G का वेक्टर सम है। A1G है 15 राइट, तो रिवर्स ऑफ माइनस A1G यानी रिवर्स ऑफ A1G 15 लेफ्ट होगा, और A2G 9 राइट है, तो इसको लिखेंगे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किधर, राइटवर्ड लिखेंगे, और माइनस A1G होगा 15 लेफ्ट, यहाँ लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, यहाँ फिर से हम रिपीट करें, माइनस 15 नहीं लिखाएगा, खाली 15 लिखाएगा, ठीक है। AP2P1G जो होगा इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। अब ये 9 राइट है, ये 15 लेफ्ट है, वेक्टर एडिशन के रूल के थ्योरी के अनुसार इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायरेक्शन वही होगा जो इन दोनों में बड़ा वाला मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब इन दोनों वेक्टर में मैग्नीट्यूड ज़्यादा इसका है, 15 बड़ा है 9 से, इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। यहाँ एरो बना दिए, ये बताता है इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, ये इसका जाके रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर, डाउट नहीं है, ठीक है, फाइन। तो यहाँ AP2P1G होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स और टेकअप करते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल्स को टेकअप करते हैं, ठीक है ना। इन व्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस आपको हम बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, इट इज जस्ट इन व्यू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये आपका 6 हो जाएगा, इसको मिटा देंगे, 5 है, एग्जाम्पल 5 हो गया, देखिए। अच्छा, फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, ऐसा है, ये आपका P2 है, P2 यहाँ लेफ्ट साइड है, P1 इधर राइट साइड है, ठीक है। और मान लीजिए कि P2 आपका लेफ्ट जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में P2 का है, और P1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको बताना है आगे वही P2 का P1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यही फॉर्मूला रिपीटेडली यूज होगा, तो बार बार बोल ही रहे हैं आपको। इसको हम लिखेंगे कैसे, AP2P1G बराबर A2G एंड रिवर्स ऑफ A1G माइनस A1G यानी रिवर्स ऑफ A1G। इसमें क्या करेंगे, इसको रिवर्स करके इसे जोड़ देंगे, तो ये आएगा A2G हो गया 17 लेफ्ट, 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। अब A1G है 8 लेफ्ट, तो माइनस A1G रिवर्स ऑफ A1G होगा 8 राइट,
यहाँ लिख देंगे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइटवर्ड। अब इन दोनों वेक्टर को हमको जोड़ना है। अब देखिए इन दोनों वेक्टर जोड़ना है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर एडिशन के रूल से 17 माइनस 8 हो जाएगा, तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन वही होगा, इन दोनों बड़ा वाले मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर का डायरेक्शन है। अब ये 8 17 ज़्यादा बड़ा है 8 से, इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, इसका डायरेक्शन भी किधर हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये P2 P1G का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, उसका डायरेक्शन जो होगा सो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। फाइन, ओके। तो P1 के रेस्पेक्ट में P2 का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। फाइन, ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जी 6th एग्जाम्पल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 6 देखिए क्या है, 6th एग्जाम्पल क्या है। 6th एग्जाम्पल ये है, ये P2 है, ये P1 है, P2 P1 हो गया। P2 का इधर एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और P1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अगेन हमको ये P2 P1G को डिटरमिन करना है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यही फॉर्मूला यूज होगा, बार बार वही यूज हो रहा है। इसको हम लिखेंगे ये P2 P1G इज नथिंग बट वेक्टर A2G एंड वेक्टर सम ऑफ रिवर्स ऑफ A1G यानी माइनस A1G। तो इसमें हमको ये P2 P1G पता करना है, तो इसको रिवर्स करके इसे जोड़ेंगे। ये P2 P1G जो होगा 3 का A2G यानी 3 लेफ्ट है, देखिए लेफ्टवर्ड एरो है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किधर टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। और A1G क्या है, A1G है 14 लेफ्ट, तो माइनस A1G क्या होगा 14 राइट होगा। इसको वेक्टर सम कर देना है 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट कर देना है। अब यहाँ अगेन फिर से हम रिपीटेडली बोल रहे हैं, माइनस 14 नहीं लिखा है, खाली 14 लिखाएगा। माइनस मतलब डायरेक्शन रिवर्स करना है, डायरेक्शन रिवर्स कर चुके हैं। अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, देखिए इसका डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है, इसका डायरेक्शन राइटवर्ड है। वेक्टर एडिशन के रूल के अनुसार इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 14 माइनस 3 हो जाएगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेक्टर एडिशन का रूल जो होता है तो 14 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों में जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। बड़ा ये वाला है, इसका राइटवर्ड डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, राइटवर्ड हो जाएगा। तो ये एरो बताता है कि इसका डायरेक्शन राइटवर्ड है और इसका मैग्नीट्यूड 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइन, क्लियर है, नो डाउट। ये 6 एग्जाम्पल जो हम डील किया आपको, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए था, है ना। जब पॉइंट्स आर मूविंग अलोंग कॉमन लाइन जॉइनिंग देम विथ एक्सेलरेशन आइदर अलोंग विथ एक्सेलरेशन अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, उससे वेरियस केसेस हम लोग डिस्कस किए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एग्जांपल अभी 6 एग्जांपल हम लोग लिए है, उसमें माने थे कि मोशन कॉमन लाइन जॉइनिंग देम के अलोंग हो रहा था, है ना। तो ऐसे हम इस वीडियो की शुरुआत में बोले थे कि हम लोग वही प्रॉब्लम लेंगे जो स्ट्रेट लाइन मोशन का है। फिर भी चूंकि एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो में, तो उसमें ये मोशन हम लोग मानेंगे स्ट्रेट लाइन नहीं होकर दोनों का अलग डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, माने कॉमन लाइन के लॉन्ग नहीं है, कोई और डायरेक्शन में है, ठीक है। उसको बेस्ट एक प्रॉब्लम टेकअप कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन और टेकअप करते हैं, 6 एग्जाम्पल डिस्कस किए, 7वां एग्जाम्पल होगा ये। इसका क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है। इसे दिया हुआ है कि गिवन है कि P1 P2 आर 2 पॉइंट्स मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। A1G हो गया P का एक्सेलरेशन, जो कि हो गया आपका A1G हो गया मान लीजिए
से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, राइट वर्ड है। और ऐसा करते हैं, इसको हम वर्ड्स में लिख देते हैं। हाँ, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि P1 and P2 are 2 points. P1 and P2 are 2 points which move in XY plane. Acceleration of P1 with respect to ground. Acceleration of P1 with respect to ground is 4 meter per second square along positive x-axis. Acceleration of P1 with respect to ground is acceleration of P1 with respect to ground is suppose 4 meter per second square in rightward direction. That is along positive x-axis, ठीक है। And acceleration of with respect to ground is 8 meter per second square at an angle of theta with the positive x-axis. At an angle of theta with positive x-axis. The value of theta is such that with respect to P1, acceleration of P2 is along positive y direction. With respect, WRT meaning with respect to P1, acceleration of P2 is along positive y direction. हम लोग पता करना है कि फाइंड क्या थीटा क्या होगा, टू फाइंड थीटा हमको डिटरमिन करना है, समझ गए ना। यही क्वेश्चन था, तो रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। P1 P2 2 मूविंग पॉइंट्स है, एक्सल प्लेन में मूव कर रहा है। P1 का किसी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइटवर्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और उसी इंस्टेंट पर P2 का जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा का वैल्यू ऐसा है कि P1 के रेस्पेक्ट में P2 का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। अब बताना है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। विल ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये जो 4 राइट लिखे हैं ये एरो मीन करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, पॉइंट्स का लोकेशन नहीं गिवन है, P1 कहाँ है, P2 कहाँ है, नथिंग हैज बीन सेड, तो जहाँ मन करे बना दीजिए। देखिए जहाँ तक रिलेटिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है उसको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब खाली A1G A2G और दोनों के बीच के एंगल थीटा से मतलब है, दोनों A1 A2 के एंगल के बीच से, मैंने पॉइंट्स कहाँ सिचुएटेड है डजंट मैटर, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ मेरा कहीं P1 है, कहीं बोला नहीं है P1, मान लेते हैं एक्स एक्सिस को कहीं पर है, और P1 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइटवर्ड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ये P1 का ग्राउंड में एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अच्छा, P2 कहाँ पर है अभी बोला नहीं है कुछ, कहीं दिखा दीजिए जहाँ मन कर, है ना। जैसे देखिए P2 को यहाँ दिखाते हैं, क्या ऐसा करते हैं एक्स यहीं पे दिखाते हैं कन्वीनियंस के लिए। मान लेते हैं यहाँ कहीं मेरा P2 है। अच्छा, P2 का जो एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये देखिए ऐसे। अब कहीं थीटा वो बनाता है, थीटा बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अच्छा, थीटा अब एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है कुछ दिया नहीं है, कैलकुलेशन के लिए एक्यूट मान के चलते हैं, अगर ऑब्ट्यूज भी होगा तो कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। तो ये क्वांटिटी जो 4 राइट देख रहे हैं ये आपका A1G हो गया, और ये जो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थीटा एंगल देख रहे हैं ये A2G हो गया, ठीक है ना। अब पता है कि हमको गिवन है कि A1G के P1 के रेस्पेक्ट में P2 का रिलेटिव एक्सेलरेशन y एक्सिस के लॉन्ग है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि AP2 P1G का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखिए AP2 P1G, हाँ इसको लिखेंगे एज यूजुअल कैसे, A2G माइनस क्या A1G,
ऐसा लिखेंगे, ठीक है। यानी इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे A2G और रिवर्स ऑफ क्या, A1G, ऐसा लिखेंगे। अब A2G इसमें कौन है, ये वाला है। A1G कौन है, 4 राइट, तो माइनस A1G यानी रिवर्स ऑफ A1G क्या होगा, 4 लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए AP2 P1G इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो A2G 8 राइट है, ये देखिए ये दिखा दिए आपको, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थीटा एंगल पर हो गया। और A1G आपका 4 राइट है, तो माइनस A1G यानी A1G का रिवर्स जो होगा 4 लेफ्ट होगा, इसको रिवर्स कर दिए 4 लेफ्ट। अब इन दोनों वेक्टर का टेल हम कोइंसाइड करा दिए हैं कहाँ पर, P2 पर। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही AP2 P1G है। अब इसमें साफ बोला है कि AP2 P1G जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, बताइए वाई एक्सिस हो गया, AP2 P1G इसी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, देखिए दिस इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग कि पैरेललोग्राम मेथड यूज करेंगे। हाँ, इन दोनों का एडजेसेंट साइड मान के दोनों का टेल कोइंसाइड हो गया, A2G और माइनस A1G का टेल कोइंसाइड हो गया। अब दोनों का एडजेसेंट साइड मान के हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ऐसे, ये वाला आपका 8 है तो भी 8 हो गया ना, 8 हो गया, और ये आपको कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। अब ये देखिए ये थीटा है, ठीक है ना, तो ये एंगल इसमें, ये एंगल भी थीटा होगा, पैरेललोग्राम बन गया ना। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखिए दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका हाइपोटेन्यूज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका बेस 4 मीटर पर सेकंड है, ये थीटा एंगल है, दिस बाय दिस आपका कॉस थीटा हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज 8 है, तो 4/8 लिखेंगे, यानी 1/2 हो जाएगा, कॉस थीटा हाफ हो गया, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री हो जाएगा, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 1/2 यानी थीटा 60 डिग्री, यही इज द रिक्वायर्ड आंसर, समझ गए। तो इसमें हम बोलेंगे कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा, तो थीटा अगर 60 डिग्री होगा ना, तो P1 के रेस्पेक्ट टू P2 का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, समझ गए। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। यहाँ जाके सेशन 23 खत्म हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, 24 सेशन में हम लोग क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन प्रॉब्लम्स लेंगे, जिससे हम लोग मान के चलेंगे कि सारा दोनों पॉइंट का जो मोशन है इट इज अराउंड कॉमन लाइन जॉइनिंग देम, और दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। उसे वेरियस केसेस लेके हम लोग पता करेंगे कितना देर के बाद दोनों पॉइंट जाके कोलाइड करेगा, कब कोलाइड करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कितना देर बाद कोलाइड करेगा, सारा प्रॉब्लम हम लोग टेकअप करेंगे 24 सेशन में, ठीक है। अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं, फाइन।